تلنگانہ کے وزیر پونم پربھاکر نے ریاست کی ہمہ جہت ترقی کے لیے مرکزی حکومت سے مکمل تعاون کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت پر زور دیا کہ وہ ریاست کے لیے ترقیاتی فنڈز، اہم منصوبوں اور بنیادی ڈھانچے کی فراہمی میں اپنا تعاون پیش کرے۔ انہوں نے بتایا کہ اپلی پلی کو پرجا پالنا پروگرام کے تحت وہ خود حسن آباد حلقے کے مختلف دیہاتوں کا دورہ کر کے مقامی شہریوں کے مسائل براہ راست سن رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دیہی علاقوں کی بنیادی ضروریات اور پانی اور سڑکوں کے مسائل کا جائزہ لے کر ان کے حل کے لیے فوری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان کے مطابق ریاستی حکومت دیہی علاقوں کی کایا پلٹنے اور ہر طبقے تک فلاحی اسکیموں کا فائدے پہنچانے کے لیے مسلسل کوشاں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر مرکزی حکومت کی جانب سے بروقت گرانٹس اور اجازت نامے مل جائیں تو ریاست کی ترقیاتی رفتار میں مزید تیزی آئے گی۔ وزیر کے اس عوامی رابطے کے بعد مقامی شہریوں اور دیہاتیوں میں خوشی کی لہر دیکھی جا رہی ہے، جبکہ اپوزیشن نے اس پروگرام کو انتخابی ڈرامہ قرار دیا ہے۔ اس مطالبے کے بعد ریاست کے ترقیاتی بجٹ اور مرکزی گرانٹس کے حوالے سے ایک بار پھر سیاسی حلقوں میں بحث اور کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఏ విధంగా ప్రజలకు అందుతా ఉన్నాయి, అదేవిధంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇంకా వాళ్ళకు అవసరమైనటువంటి అంశాలు సమస్యలు ఏ విధంగా పరిష్కరించాలనే కార్యాచరణతోటి హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఉన్న 173 గ్రామాల్లో పల్లెపల్లెకు ప్రజాపాలన పల్లెపల్లెకు పొన్నమన్న కార్యక్రమం పేరు మీద నేను 19వ తేదీ నుంచి పర్యటన ప్రారంభం చేసిన। ఇది 4వ మండలం। ఈ విధంగా ప్రతిరోజు ఒక మండలంలో 5-6 గ్రామాలు తిరుగుతూ అక్కడ అందరితోటి సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకొని అక్కడ ప్రజా సమస్యలను ముఖ్యంగా ఆ ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితుల్లో జలసిరి కార్యక్రమం ఏ విధంగా ఉంది, ఆయిల్ ఫామ్ ఏ విధంగా ఈ ప్రాంతంలో ఆరుతడి పంటలు వేసుకోవాలి, దాంతోపాటు ఆరోగ్యానికి సంబంధించి, విద్యకు సంబంధించి, అంగన్వాడీకి సంబంధించితో పాటుగా సోలార్ ప్యానెల్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవడంతో పాటుగా ఇందిరమ్మ ఇండ్ల నిర్మాణము, పెన్షన్స్, కొత్త పెన్షన్స్ తదితర అనేక అంశాలకు సంబంధించి మరి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించే విధంగా కార్యాచరణ తీసుకోవడం, వారందరినీ కూడా భాగస్వాములు చేసి వాళ్ళ సమస్యలను ఓపికగా వింటూ వాటిని అధికారులతో చర్చించి పరిష్కరించే రీతి లోపల కార్యాచరణ కొనసాగిస్తాను। ఈ కార్యాచరణ వల్ల గ్రామాల లోపల ప్రజలకు నేరుగా కలవడము। कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली मुकन सिंह ठाकुर ने कोमाटी रेड्डी राजू गोपाल रेड्डी के हालिया बयानात पर सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए उनका शदीद मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा कि वजीर का ओहदा न मिलने से पैदा होने वाली शदीद मायूसी की वजह से राजू गोपाल रेड्डी को खुद नहीं मालूम कि वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि वजारती कलमदान न मिलने का गम और गुस्सा उनके बयानात और रोये से वाज़ेह तौर पर जाहिर हो रहा है। कानून साज असेंबली के रुकन के मुताबिक जब इंसान ओहदे के लालच में तवाजुन खो बैठता है तो वो इसी किस्म के गैर मंतिकी बयानात देना शुरू कर देता है। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी की क़यादत और उसूलों को नज़रअंदाज करके सिर्फ ज़ाती मुफादात के लिए इस तरह की बातचीत करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अपोजिशन और अपने ही रहनुमाहे पर इस तरह की तनकीद करने से पहले उन्हें अपने सियासी मौक़िफ़ और बयानात का जायज़ा लेना चाहिए। कांग्रेस रहनुमा के इस सख्त और तंजिया बयान के बाद पार्टी के अंदरूनी हलकों और मकामी सियासत में ज़बरदस्त सियासी सनसनी और बहस का माहौल पैदा हो गया है। इस लफ्जी जंग से सियासी गिलियारों में हरीफों के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ने के वाज़े इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। कोमटिरेड्डी గారికేమో మంత్రి పదవి రాలేదని మాట్లాడతాం, ఆయన కూడా ఇష్టమొచ్చినట్టు మాట్లాడతాడు। ఎప్పుడు బీజేపీకి గొప్పదని మాట్లాడతాడు, ఎప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ గొప్పదని మాట్లాడతాడు, ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడతారో వారికే తెలియదు। వాళ్ళ సీనియర్ 2 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా అయ్యి, ఒకసారి ఎమ్మెల్సీ అయ్యి, ఒకసారి ఎంపీ అయ్యి అనుభవం ఉన్నటువంటి మీరే అట్లా మాట్లాడితే మీరెవరైనా మాలాంటి వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేస్తే మొదటిసారి ఎమ్మెల్యేలు ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారు। మేము చిన్ననాటి నుంచి ఎన్ఎస్ఐ నుంచి పనిచేసుకుంటూ వస్తా ఉన్నాం। అవకాశాలు వస్తే మేము కూడా 4-5 సార్లు ఎమ్మెల్యేలు అయ్యే వాళ్ళం కావచ్చు, కానీ మాట్లాడేవాడిని మీలాంటి వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటే తప్పుగా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే ఇవాళ సామాన్య కార్యకర్త అయినా ఎదిరించడం ఖాయమనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి। साबिक वजीर सरयनिवास गौड़ ने निजी अस्पतालों में हेल्थ कार्ड्स की अदम कारकर्दगी पर मौजूदा हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि निजी इलाजगाहों में हेल्थ कार्ड्स कबूल न किए जाने की वजह से सरकारी मुलाजमीन और उनके अहल खाना शदीद मुश्किलात का शिकार है।
उन्होंने निशानदेही की कि पिछले 3 माह से मुलाजमीन की माहाना तनख्वाहों से बाकायदगी के साथ रकम की कटौती की जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से काटी गई रकम की मुकम्मल तफसीलात और हेल्थ केयर ट्रस्ट का मुकम्मल हिसाब आम किया जाए। साबिक वजीर ने हुकूमत से पुराने तमाम बकायाजात की फौरी अदायगी और मुलाजमीन को बिला ताखीर बेहतर इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम करने का मुतालबा किया। उन्होंने खबरदार किया कि मुलाजमीन की सेहत और बुनियादी हुकूक के मामले पर किसी भी किस्म की गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तनकीदी बयान के बाद रियासत के इंतजामी हलकों, सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों और हुक्मरान जमात के ऐवानों में शदीद बहस शुरू हो गई है। టోటల్గా తెలంగాణ వ్యవస్థని నిర్వీర్యం చేస్తుంది. అందరినీ, అన్ని కుల వృత్తులను, వ్యవసాయాన్ని, ఉద్యోగులను, నిరుద్యోగులను ఎవ్వరిని వదిలిపెట్టలేదు. కేవలం ప్రభుత్వం ఉన్న కొంతమంది పెద్దలు వాళ్ళు కడుపు నిండింది వాళ్ళ పనిలో వాళ్ళు ఉన్నారు. దోసుకోవడం తప్ప ఏం లేదు. భూములు దోసుకుంటున్నారు, నిధులు దోసుకుంటున్నారు, ఎవరిని ఇష్టానుసారం నడుస్తుంది. ఏ హామీ లేదు. రిటైర్డ్ ఉద్యోగి చనిపోతున్నాడు, హెల్త్ కార్డ్స్ ఇవ్వలేదు, డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు, హెల్త్ కార్డ్స్ ఇవ్వలేదు, హాస్పిటల్ పట్టించుకోవట్లేదు, చనిపోతున్నారు, ఎవరు అడిగేటోళ్ళు లేడు. రిటైర్డ్ బెనిఫిట్స్ వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళకు ఆఫీస్ ఇస్తలేరు. రిటైర్ అయిన తర్వాత పని చేస్తున్న వాళ్ళకు డిఎల్ లేవు, పెన్షన్ లేదు. పెన్షన్ కొత్త పెన్షన్ తీసేసి పాత పెన్షన్ విధానం తెస్తామన్నారు, సిపిఎస్ రద్దు చేస్తామన్నారు, అది లేదు. రిక్రూట్మెంట్ లేదు. కనీసం వ్యవసాయం చేసి బతుకుతాం నాయన అంటే వచ్చే నీళ్ళు కూడా సముద్రంలో కలిసేటట్టు చేసింది, ఆంధ్రకు పోయేటట్టు చేసింది, కానీ తెలంగాణ వాడుకునేటట్టు చేయలేదు. కనుక 2-3 ఏళ్ళు చూసినాం, ఓపిక పట్టినాం. ఇంకా తెలంగాణ నష్టం జరుగుతుంటే మేము ఊరుకోము, ఖచ్చితంగా ప్రజా ఆందోళన చేస్తాం. ఇది ప్రజాప్రభుత్వం కాదు, ప్రజా కర్కశ ప్రభుత్వం. तीरथ और कानूनी उमूर के माहिर नीज़ कानून साज कौंसिल के रुकन दासूजो शरावन ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के अमरीकी दौरे की इजाज़त मुस्तरद होने पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी वज़ारत अमूर ख़ारजा को ये वाज़े करना चाहिए कि वज़ीर आला के गैर मुल्की दौरे की मंजूरी क्यों रोकी गई। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि अवामी और सियासी हलकों में ये सवाल शिद्दत से उठाया जा रहा है कि वज़ीर आला इस दौरे के दौरान कौन से मुबैना गैर मुनासिब इक़दामात मुलाकातें करने वाले थे। कौंसिल के रुकन ने मुतालबा किया कि रियासत की बरसरन इक़्तिदार कांग्रेस और मरकज़ की बीजेपी हुकूमतों को इस मामले पर खामोशी तोड़कर अवाम के सामने मुकम्मल सच्चाई लानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जमहूरी निज़ाम में शफाफियत बरकरार रखना दोनों हुकूमतों की बुनियादी और इखलाकी जिम्मेदारी है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर दौरे का मकसद सिर्फ रियासत में सरमायाकारी लाना था तो फिर मरकज़ी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ात और इनकार की नौबत क्यों आई। इस चैलेंजिंग और सख्त बयान के बाद रियासत की सियासत में कांग्रेस और बीजेपी के ताल्लुकात और वज़ीर आला के दौरा अमरीका को लेकर नई सियासी बहस और अल्फाज की जंग शुरू हो गई है। We demand both the Telangana state government headed by Mr. Revanth Reddy and also Ministry of External Affairs of Government of India to transparently disclose the minute-by-minute travel schedule proposed by Mr. Revanth Reddy to America. On what grounds Ministry of External Affairs has not permitted Mr. Revanth Reddy to visit United States of America by simply claiming that his visit and his meetings are inappropriate to the position that he holds. What does that mean by inappropriate? I think people of Telangana have a right to know from both the BJP and the Congress governments that what does that mean by inappropriate. If in case Ministry of External Affairs is so convinced that Revanth Reddy ji is indulging in inappropriate activities as part of his schedule, we have a right to know as our Chief Minister is representing the 4 crore people of Telangana. So therefore we appeal to the Ministry of External Affairs not to escape by the word called inappropriate and explain to the people in detail by publishing the entire itinerary what does that mean by inappropriate to the people of Telangana. At the same time, Mr. Revanth Reddy also has a constitutional obligation
because he's a chief minister. In the capacity of a chief minister, he planned to visit America. So therefore, he has the moral and the constitutional obligation to explain in detail, minute by minute, itinerary and travel schedule to the people of Telangana or people of this country. Because very rarely we would find that chief ministers were stopped visiting various countries. कर्नाटक के जिला बीलगावी में भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों ने सूबाई वजीर नागेंदर के खिलाफ एक अजीम अलशान और शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने वजीर के खिलाफ संगीन इल्जामात आयद करते हुए इनसे फौरी तौर पर अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का मुतालबात उठाया। बीजेपी के हामियों और कारकुनों ने सड़कों पर जमा होकर शदीद नारेबाजी की और सूबाई हुकूमत के खिलाफ अपने शदीद गुस्से का इजहार किया। मुजाहिरीन का कहना था कि बदउनवानी और बेज़ाब्तगियों के शदीद इल्जामात के पेश नज़र वजीर का अपने ओहदे पर बरकरार रहना जमहूरी अक़दार के खिलाफ है। पुलिस ने हालात की हसासियत को देखते हुए मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात किए। एहतजाज की वजह से इलाके के अहम रास्तों पर ट्रैफिक का निज़ाम कुछ देर के लिए मुतासिर हुआ और आम शहरियों को आमद-ओ-रफ्त में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। अपोजिशन पार्टी के रहनुमाओं ने वाज़े किया है कि जब तक वजीर का इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता उनकी ये एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी। इस मुजाहरे के बाद सूबे की सियासत में बरसरन इक़्तिदार जमात और अपोजिशन के दरमियान सियासी कशीदगी और लफ्ज़ी जंग मज़ीद शदीद हो गई है। अवामी गीतों की मरूफ फनकार माधुरी राठौर ने अपने ऊपर होने वाले जिस्मानी हमले और मोबाइल फ़ोन की चोरी के खिलाफ पुलिस में बाकायदा शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि ईश्वर साई की अहलिया शरनिया ने उनके साथ शदीद गालम गलोह की और बगैर किसी वजह के उन पर तशद्दुद किया। शिकायत कुनिंदा के मुताबिक उनकी किरदार कशी के मकसद से इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे समाजी राबतों के प्लेटफॉर्म्स पर मुसलसल गलत और मन घड़त प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने मजीद बताया कि हमला आवरों ने उनकी इजाज़त के बगैर उनकी वीडियोज़ बनाए और मौके का फ़ायदा उठाते हुए उनका कीमती आईफोन भी चरा लिया। लोक गुलकारा ने पुलिस से अपील की है कि वो उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं और मुल्ज़िमीन के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें। पुलिस ने फनकारा की तहरीरी शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करके मामले की तफसीली तहकीकात का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया है। वाक़ये के बाद से मकामी फनकारों और उनके चाहने वालों में शदीद गम और गुस्सा और तशवीश की लहर पाई जाती है। इस तनाज़ो के बाद समाजी मीडिया पर दोनों फरीक़ैन के हामियों के दरमियान ज़बरदस्त बहस और लफ्ज़ी जंग शुरू हो गई है। नारायणपुर के मकामी देहातियों ने इंतखाबात के दौरान दिए गए वादे के मुताबिक अपने गांव को डूबने वाला इलाका करार देने का मुतालबा करते हुए एक ज़बरदस्त धुना दिया। मुजाहिरीन ने मकामी कानून साज असेंबली के रुकन मेडिपली सतीम पर जोर दिया कि वो अपने इंतखाबी वादे को फौरी तौर पर पूरा करें। उन्होंने कहा कि डूबने वाले इलाके का बाज़ाब्ता ऐलान न होने की वजह से गांव के लोग शदीद मुश्किलात और माली नुकसान का सामना कर रहे हैं। गांव वालों की इस जायज़ तहरीक और एहतजाजी मुजाहरे की हिमायत करते हुए साबिक रुकन असेंबली सुनके रवि शंकर ने भी धुना में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने मौजूदा हुकूमत और मकामी नुमाइंदे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुतासिरा शहरियों को फौरी इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। साबिक रुकन असेंबली ने वाज़े किया कि हुक्मरान जमात के रहनुमाओं को अवाम से किए गए वादों से इन्हिराफ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस शदीद एहतजाज और धरने की वजह से इलाके की मकामी इंतज़ामिया और सियासी हलकों में ज़बरदस्त हलचल मच गई है। पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निमटने के लिए मौके पर पहुंचकर हिफाजती इक़दामात को मज़ीद सख्त कर दिया है।
తప్ప ఈ ప్రభుత్వాలు మనం ఆలోచించే పరిస్థితికి వదిలేసి కుటుంబాలను వదిలేసి రోడ్డు మీద వచ్చి కూర్చోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు కదా. వాళ్ళు స్పందించడానికే, మాట్లాడడానికే, ప్రభుత్వం పండుగ ఉన్నందుకే ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం. ప్రకటించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. నారాయణపూర్ గ్రామాన్ని ముప్రగాముగా ప్రకటించే వరకు పోరాడాలి. నారాయణపూర్ గ్రామాన్ని వెంటనే అక్రమ కేసులను గ్రామాన్ని వెంటనే నారాయణపూర్ గ్రామ ప్రజలకు झारखंड में अपोजिशन के सीनियर रहनुमा बाबू लाल मरिंडी ने रांची के एक अस्पताल का दौरा करके जख्मियों की इयादत की है। उन्होंने इन तमाम तलबा और कारकुनों की मिजाज परसी की जो गुज़िश्ता रोज़ सियासी मुखालफीन के साथ होने वाले तसादुम में शदीद जख्मी हुए थे। उन्होंने इंतज़ामिया और हस्पताल के डॉक्टरों से बातचीत करके तमाम मुतासरीन को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की है। ज़राए के मुताबिक रांची में एक एहतजाजी मुजाहरे के दौरान दोनों सियासी जमातों के हामियों के दरमियान शदीद झड़प और हंगामा आराई हुई थी। अपोजिशन रहनुमा ने इल्ज़ाम आयद किया कि पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद करने और हमला करने के लिए पहले से ही मनसूबाबंदी की गई थी। उन्होंने इस पुरतशद्दुद वाक़ये की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी और सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि जमहूरी निज़ाम में सियासी इख्तिलाफ की बुनियाद पर तशद्दुद और हमला करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इस अफसोसनाक वाक़ये के बाद इलाके में सियासी कशीदगी और दोनों जमातों के दरमियान बयानबाजी में मज़ीद शिद्दत आ गई है। आप सब ने 2-3 मैंने उदाहरण भी दिखाया। एक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता को, एक लड़का है महेश गुंडा के, इमरान करके, उन्होंने अपने ट्विटर पर उन्होंने इमरजेंसी कॉल के नाम पर 4 बजे कार्यालय में बुलाया। तो ये साफ दिखता है कि भाई ऐसा कोई इमरजेंसी घटना तो नहीं घटी थी, कोई इमरजेंसी मीटिंग थी। तो ये लगता है कि 6 बजे जब छात्र और नौजवानों का जब कार्यक्रम था तो उसमें डंडे लेकर के पिटाई करना ये उनकी षड्यंत्र था, उनकी पहले से तय था। और इस बात की पुष्टि इससे भी होता है कि रामगढ़ के एक जेएमएम के नेता वो बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई भी हेमंत सोरेन की पुतला को दहन करेगा उसकी पिटाई। वाराणसी के रोहनिया इलाके में पिछले 3 दिनों से पुरअसरार तौर पर लापता 19 साला तालबा की लाश बरामद हुई है। पुलिस को तालबा की मस्खशदा लाश इसके एक वाकिफकार नौजवान के किराए के मकान के बैत अलखला से मिली है। मुतवफ़िया 17 अगस्त को मामूल के मुताबिक तालीमी इदारे के लिए घर से निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। खानदान के अफराद की जानिब से दर्ज कराई गई शिकायत के बाद पुलिस ने जदीद तकनीक और मोबाइल लोकेशन की मदद से इस कमरे का सुराग लगाया। इब्तिदाई मुआयने के बाद पुलिस ने मकान को सील कर दिया है और वाक़ये के बाद से फरार नौजवान की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मौत की असल और वाकई वजूहात का पता तिब्बी मुआयने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल सकेगा। पुलिस ने इस सिलसिले में कत्ल और सबूत मिटाने की संगीन दफात के तहत केस दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इस खौफनाक और सनसनीखेज वाक़ये के बाद इलाके के रिहायशियों और तालीमी हलकों में शदीद खौफ व हरास फैल गया है। मानिकुंडा के मकामी रिहायशियों ने सड़क की तौसी की फौरी ज़रूरत को उजागर करने के लिए एक ज़बरदस्त एहतिजाजी मुजाहरा किया। मिर्चीटू चौराहे से लेकर यूनिवर्सिटी कॉलोनी तक सड़क की कुशादगी के मुतालबे के साथ सैकड़ों शहरियों ने इस एहतिजाज में शिरकत की। मुजाहिरीन की क़ियादत सीताराम धोलीपाला ने की, जिन्होंने अवामी परेशानियों को इंतज़ामिया के सामने मुअस्सर अंदाज में रखा। मुजाहरे में शामिल अफराद ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि रोज़ाना रश के औकात में यहाँ बदतरीन ट्रैफिक जाम हो जाता है। इस ट्रैफिक की वजह से एम्बुलेंसों और आग बुझाने वाली गाड़ियों जैसे हंगामी ज़राए को भी गुजरने के लिए रास्ता नहीं मिल पाता। सड़क की तंगी के बाइस सबसे ज़्यादा मुश्किलात स्कूल के बच्चों और ज़ईफ़ शहरियों को पेश आ रही है।
مظاہرین نے حکام سے مطالبہ کیا کہ اس اہم سڑک کو فوری طور پر کشادہ کیا جائے تاکہ بڑھتے ہوئے حادثات اور ٹریفک کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ اس احتجاج کے بعد مقامی انتظامیہ اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر مظاہرین کی درخواست پر غور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ లేకపోతే ప్రభుత్వం స్పందించి ఈ పర్మిషన్ నిలిపేయాలి। ప్రభుత్వం స్పందించి వెంటనే పర్మిషన్ కూడా నిలిపేయాలి। రోడ్డు కనుక తిరగకపోతే ఈ పర్మిషన్ వెంటనే నిలిపేయాలి। ఈ మొత్తం ఇక్కడ ఎంకరేజ్మెంట్ అంతా ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ కింద లెక్క। ఈ ప్రభుత్వ స్థలంలో వీళ్ళు ఎట్లాగా వాళ్ళు సొంతానికి వాడుకుంటారో ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి। 10 కోట్లు, 1 కాదు 2 కాదు, 10 కోట్లు పెట్టి ప్రభుత్వం కడితే సొంత ఆస్తులాగా వాడుకుంటున్నారు। దయచేసి మనం దీని మీద స్పందించాల్సిన అవసరం ఉంది। ప్రభుత్వం వాడకన్నా ముందు ప్రభుత్వం స్పందించాలి। ప్రభుత్వం స్పందించి అన్ని చర్యలు చేపట్టాలని చెప్పేసి మేము పూర్తి స్థాయిలో డిమాండ్ చేస్తున్నాం। మణికొండ వాసుల ఐక్యత, 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 మణికొండ వాసుల ఐక్యత। अलिफाब्डस में वाक़ तालीमी और समाजी अंजुमन के मरकज़ में राजा बहादुर वेंकट रामा रेड्डी की 157वीं यौम पैदाइश की तकरीब नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इस पुरवकार तकरीब में सीनियर पुलिस अफसर सजनार ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और अजीम शख्सियत को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने अपने खिताब में राजा बहादुर की समाजी तरक्की, तालीमी इस्लाहात और अवामी खिदमत के लिए अंजाम दी गई खिदमात को याद किया। उन्होंने कहा कि गरीबों, तालिब इल्मों और समाज के तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए उनके इनकलाबी इक़दामात हमेशा नाकाबिल फरामोश रहेंगे। तकरीब के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले हैदराबाद के पुलिस इंस्पेक्टर हरीश और साइबराबाद के इंस्पेक्टर रवि को यादगारी सूना के तमगों से नवाजा गया। सजनार ने शानदार खिदमात अंजाम देने वाले पुलिस अफसरान को मुबारकबाद दी और उनकी फ़र्ज शनासी की ज़बरदस्त हुनर अफजाई की। उन्होंने नौजवान अफसरान और शहरियों पर जोर दिया कि वो राजा बहादुर के नक्श कदम पर चलते हुए समाज की खिदमत का जज्बा अपनाएं। इस बावकार तकरीब में शहर की कई नामवर शख्सियात, तालीमी माहिरीन और पुलिस हुक्काम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हैदराबाद के माधापुर इलाके के इंजिया नगर में एक ज़ेर तामीर 7 मंजिला इमारत नागहानी तौर पर ज़मीन बोस हो गई है। महज 50 गज की इंतहाई तंग ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर बनाई जाने वाली ये कसीर मंजिला इमारत अचानक गिर पड़ी, जिसकी वजह से शदीद तबाही फैली है। इमारत के गिरने से इसका भारी मलबा साथ वाक़े रिहायशी इमारत और करीबी इकामतगाह पर जा गिरा, जिससे शदीद खौफ व हरास फैल गया। हादसे की इत्तला मिलते ही आफात से निमटने वाली खुसूसी टीमें और पुलिस के आला हुक्काम फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए। इमदादी टीमों ने सख्त मशक्क़त के बाद मलबे के नीचे से लाशों और जख्मियों को निकाल कर इलाज के लिए मुंतकिल किया है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मलबे के नीचे अभी भी मुतअद्दिद मजदूर दबे हुए हैं, जिनकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई जारी है। पुलिस और बल्दियाती हुक्काम ने पूरी बस्ती को घेरे में लेकर अतराफ की इमारतों को खाली करवा लिया है। इस दर्दनाक वाक़ये के बाद इलाके में तामीराती कवानीन की खिलाफ वर्जी और लापरवाही पर मकामी लोगों में शदीद गुस्सा और बेचैनी पाई जाती है। డెబ్రిస్లో ఒక బాడీ ఇప్పుడే బయటకు వస్తుంది. అది ఏదైతే పక్క బిల్డింగ్ ఉందో అందులో పనిచేసేవాళ్ళు. ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఏదేమో ఈ పక్క బిల్డింగ్ అపార్ట్మెంట్ మీద పడింది. तेलंगाना में मजहबी अलामात और स्टिकर्स वाले ऑटो रिक्शों और गाड़ियों पर हमले किए जाने के शदीद इल्ज़ामात समाजी राब्ता आम्मा के प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे हैं।
सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले इन दावों के बाद सूबाई इंतजामिया और पुलिस की जानिब से मामले पर बाज़ाब्ता वजाहत जारी होना बाकी है। मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तंजीमों ने इन मुबैना वाक़यात पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए पुलिस से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। अवाम का कहना है कि गाड़ियों पर मजहबी निशानात की वजह से शहरियों को निशाना बनाना और उनके साथ बदसलूकी करना कानून की शदीद खिलाफ वर्जी है। समाजी रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि इन वाक़यात में मुलव्वस अनासिर की शनाख्त करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी इक़दामात किए जाएं। इस किस्म की अफवाहों और मुबैना वाक़यात के बाद मुख्तलिफ इलाकों में अवाम के दरमियान बेचैनी और तशवीश की लहर फैल गई है। पुलिस हुक्काम ने शहरियों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर गैर तस्दीक शदा खबरों और अफवाहों पर बिल्कुल कान न धरें। पुलिस ने अमन व अमान की सूरत-ए-हाल बरकरार रखने के लिए गश्त बढ़ा दी है और सोशल मीडिया पर गहरी नज़र रखी जा रही है। క్యాబ్ నడుపుకుంటున్న ఈ అన్న పైన కొంతమంది ముస్లిమ్స్ దాడి చేసిరు. ఈ అన్న క్యాబ్ నడుపుతాడు, అయితే కార్ని కొంచెం సైడ్ కెట్టేసరికి ఇంకా కొంతమంది వచ్చే ముస్లిమ్స్ కార్ ఇంకా అనుమానం ఉందని చెప్పేసి అనవసరంగా ఈ అన్న గెలిగించుకొని మరి కొట్టిరు. రీసెంట్ గా ఆటో నడుపుకుంటున్న భరత్ మీద దాడి చేశారు. దేనికోసం అంటే ఆటో ఇంకా కొటేషన్ అని చెప్పేసి. రోజు రోజుకు మన ఇందులో మీద ఇన్ని దాడులు జరుగుతున్నా కానీ యూనిటీ లేకుండా అదే సెక్యులరిజం ముసుగులో ఉంటే రేపన్నాడు మన మీద దాడులు జరుగుతాయి. ఈ అన్న మీద కొంతమంది ముస్లిమ్స్ ఈ విధంగా దాడి చేశారని చెప్పేసి బజరంగ్ దళ్ మహేష్ అన్న వెంటనే అన్న దగ్గర వెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేయడం జరిగింది. वजीर आला रेवंत रेड्डी के हल्का इंतखाब कोडनिगल के दूधियाला मंडल में वाक़े हकीम पेट गांव में शदीद तनाव के दरमियान ग्राम सभा का इनेकाद किया गया। किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निमटने के लिए पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में ये इजलास मुनक़िद किया गया था। ज़मीन के मुआवजे से महरूम मुतासरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि सरपंच रविंदर नरसिन्हा रेड्डी ने उन्हें अपने मसाइल बयान करने से ज़बरदस्ती रोका। मुतासरीन ने शदीद एहतजाज करते हुए सवाल उठाया कि जमहूरी और आज़ादाना तौर पर मुनक़िद होने वाले इजलास में उन्हें अपनी बात रखने का मौका क्यों नहीं दिया गया। मुजाहिरीन ने मकामी इंतज़ामिया और नुमाइंदों के इस रवैये पर शदीद गुस्से और तशवीश का इजहार किया। ग्राम सभा के इख्तिताम के बाद भी गांव में कशीदगी को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस का सख्त पहरा बरकरार रखा गया है। गांव के मुतासरा शहरियों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि उनके मसाइल की फौरी समाअत की जाए और मुनासिब मुआवजा फराहम किया जाए। इस वाक़ये के बाद इलाके में सियासी हलचल मच गई है और अपोजिशन जमातों ने हुक्मरान पार्टी के इस रवैये की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। सूर्यापेट जिला के मोथे पुलिस स्टेशन में खिदमात अंजाम देने वाले कांस्टेबल मोहम्मद शरीफ को महकमा पुलिस से मुस्तकिल तौर पर बरतरफ कर दिया गया है। मियाँ बीवी के दोहरे कत्ल केस में अहम मुल्जिम के तौर पर नामजद होने के बाद इस कांस्टेबल के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई है। पुलिस महकमे की जानिब से मुकम्मल और तफसीली तहकीकात के बाद सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नरसिम्हा ने बरतरफी के बाज़ाब्ता अहकामात जारी कर दिए हैं। हुक्काम के मुताबिक कानून की निगहबानी करने वाले अहलकार का इतने संगीन और शफी जुर्म में मुलव्वस होना नाकाबिल मुआफ़ी और महकमा जाती ज़वाबित की शदीद खिलाफ वर्जी है। पुलिस इंतज़ामिया ने वाज़े किया है कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ और नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए ऐसे अनासिर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। इस इबरतनाक कार्रवाई के ज़रिए तमाम पुलिस अहलकारों को ये पैगाम दिया गया है कि कानून से बालातर कोई नहीं है और जुर्म में मुलव्वस अफराद को सख्त सज़ा दी जाएगी। पुलिस महकमे के इस बरवक्त और सख्त फैसले की मकामी शहरियों और अवामी हलकों की जानिब से ज़बरदस्त सिताइश की जा रही है। इस अहम और बड़ी बरतरफी के बाद ज़िला के इंतज़ामी गिलियारों और पुलिस महकमे में शदीद सनसनी और खौफ का माहौल पैदा हो गया है। वरंगल के अरसोगट्टा इलाके में वाक़े एक शराब खाने में बटालियन के एक कांस्टेबल ने शदीद नशे की हालत में हंगामा आराई शुरू कर दी। शराब खाने के अमले ने सूरत-ए-हाल को ख़राब होते देखकर फौरी तौर पर हंगामी हेल्पलाइन नंबर पर पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही बीट कांस्टेबल संतोष रेड्डी मौके पर पहुंचे और बदनज़मी पैदा करने वाले अहलकार को समझाने और डांटने की कोशिश की। इसके बाद बटालियन कांस्टेबल ने मुश्तइल होकर ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल पर हमला कर दिया और दोनों के दरमियान शदीद हाथापाई हुई। मकामी लोगों की मौजूदगी में वहां मौजूद कांस्टेबल और दीगर अफराद ने बटालियन के अहलकार पर लाठी से जवाबी हमला कर दिया। नशे में धत अहलकार के इस नाशाइस्ता रवैये और हंगामे की वजह से इलाके के शहरियों में शदीद सनसनी और खौफ फैला। वाक़ये की इत्तला मिलते ही सीनियर पुलिस हुक्काम ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी और मामलात का जायजा लिया।
इंतज़ामिया ने कानून को हाथ में लेने और ड्यूटी में खलल डालने वाले अहलकारों के खिलाफ सख्त महकमाजाती कार्रवाई करने का इशारा दिया है। వీని కూడా ఏయ్